ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर रिपोर्ट। This is Akashvani. We now bring you today's highlights of the 7th Khelo India Youth Games being held in Bihar. 7वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार। Hello and welcome to the highlights of the day at the 7th Khelo India Youth Games Bihar. I am Pankaj Athavle. The 7th Khelo India Youth Games serve as a nursery to Indian sports. This time, the young athletes performed beyond expectations and their performances were sensational. For most athletes at these games, it was a new experience as they faced challenges, impossible tasks and hurdles. But in sports, pain is a privilege. Boxing is the ultimate challenge, and boxers at the Patliputra Rail Complex were throwing punches at each other as they refused to give up. Here's Manoj Yadav from the ringside with the news on the Gold Rush. Today was the final showdown in the boxing ring after the exciting few days in the Khelo India Games. In the first event in flyweight categories, boys, Brijesh Tamta of Uttarakhand won the gold medal, defeating Jatin Sharma of Haryana, who settled for silver. We spoke to Brijesh and he shared his feeling with us. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने उत्तराखंड के लिए गोल्ड ले रहा हूं, जो कि एक ही गोल्ड है हमारे उत्तराखंड का। In the middleweight category, Haryana boxer dominated the bout and won 5-0 by beating Punjab's boxer Shubdeep to grab gold. We spoke to Rahul Kundu and he said, जैसे कि गोल्ड लिया तो मैं बहुत खुश हूँ, अपने कोच और माता पिता को धन्यवाद करना चाहता हूँ। Light middleweight category saw a very intense fight and the result went in favor of Samuel from Mizoram and Praveen from Uttar Pradesh settled for silver. After the bouts, we spoke to Praveen and he shared his experience. खेलो इंडिया तो बहुत अच्छा था, लेकिन सर मेरे में कहीं न कहीं कमी थी और सर मेरे में इंजरी थी, इस कारण हमें लॉस किया हूँ। The cruiserweight category, Gaurav won his first gold medal by defeating Aniket of Himachal Pradesh. Gaurav, after winning the gold medal, said, बहुत बढ़िया फील हो रहा है। पहला खेलो इंडिया था मेरा और पहले खेलो इंडिया में गोल्ड आना बड़ी बात होती है। We also spoke to one of the bronze medalists, Aditya from Haryana, and he shared his experience of Khelo India Games. बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को ब्रॉन्ज मेडल मिला है और ये मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी है जो मैंने अभी करना स्टार्ट किया। काफी सालों के बाद मेरा मेडल आया इतने अच्छे लेवल पर। On the other hand, ring number 2 where girls finals were started with flyweight. Suman Kumari of Rajasthan got gold, defeating Nidhi, who settled for silver. Suman shared her feelings with us. अच्छा लग रहा है मेडल जीत के। मैंने बहुत ट्रेनिंग की थी इस मेडल के लिए और उम्मीद थी गोल्ड लेके जाऊंगी। In the featherweight category, Manipur grabbed the gold while silver went to Punjab. After winning the bout, the player from Manipur said, मेरा नाम Radhamani Longja. Today, bout win is I'm very proud for Manipur. In the bantamweight category, Nisha of Rajasthan registered a 5-0 win over Haryana player Jannat to win gold medal. Nisha spoke to us and shared her experience. मुझे गोल्ड लेने के बाद बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने मेरी पूरी जी जान लगाई है तब जाके गोल्ड मिला है। Fencing is a game of living chess, where reflexes work in combination with intent. Mind and body must work together every moment. Fencers from across the country took some serious baby steps with focus, discipline and determination. KD Shukla narrates details from the foil, saber and epi events. तलवारबाजी, जहाँ जरूरत होती है चील जैसी नजर, चीते जैसी फुर्ती और शेर जैसा वार, ऐसा ही हर प्रहार दिलाता है जीत। आज दांव पर थे टीम इवेंट के 3 स्वर्ण। लड़कों और लड़कियों के दोनों ही वर्गों में आज हरियाणा ने अपना दबदबा बनाते हुए 2 स्वर्ण जीते। पहला स्वर्ण लड़कों के फॉइल इवेंट में मणिपुर को 45-28 से हराकर जीता। टीम के कप्तान 15 साल के विश्वजीत सांगवान, वो भी अच्छा खेले, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके आए हैं यहाँ पे। हरियाणा टीम के ही सदस्य यशराज, तैयारी बहुत अच्छी थी, बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे इसकी, जीत के बहुत अच्छा लगा। मणिपुर को रजत से संतोष करना पड़ा। टीम के सदस्य के पृथ्वीराज सिंह, हम भी मानते हैं हम लोग ठीक से नहीं खेलता और हम लोग बहुत बाकी है, बहुत पीछे, और हम ट्राई करेंगे आगे ऊपर होने के लिए। हम लोग बहुत आलसी होता है, हम सच बताता हूँ, हम लोग आलसी होता है, इसलिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब अच्छे से खेल पाएगा ना। वहीं दूसरे फाइनल में लड़कियों के सेबर मुकाबलों में हरियाणा ने मणिपुर को एक बार फिर शिकस्त देते हुए 45-27 से सोना हासिल किया। टीम की कप्तान खुशबू, चारों ने एक साथ मिलके खेला है जिसकी वजह से हमारी टीम जीती है। हमारे सबके कॉन्फिडेंस का वो है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे गोल्ड
मेडल लेके जा रहे हैं। सिल्वर प्राप्त होने पर मणिपुर टीम की सदस्य प्रिया, बहुत अच्छा था एंड बहुत एक्सपीरियंस भी हमसे मिला। मेहनत करी, नेक्स्ट टाइम गोल मारने के लिए ऐसे सोचा। तीसरे फाइनल में लड़कों के एपी मुकाबले में हरियाणा के सामने थी महाराष्ट्र की टीम और इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में महाराष्ट्र ने 45-43 से जीत दर्ज की। टीम के कप्तान साई प्रसाद, गोल मार दिया, बस खुशी हो रही है। उनके पास लीड होकर भी कवर कर मैच जीत दिया तो अच्छा लग रहा है। उनके पास लीड था, मैंने कवर किया तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, थोड़ा सा अच्छा खेल पाया। स्वर्ण से चूकने पर हरियाणा टीम के सदस्य प्रिंस हुडा, मेरे लिए तो मैच बड़ा बुरा था। वैसे तो यही सीखने को मिला, लीड मेंटेन कैसे करनी है। एक तो हमारे पास लीड हो तो पीछे खेलो, आगे मतलब उसको ही पॉइंट वही हो, मौत के कुएं में कूदना वही बड़ा काम होगा। हरियाणा फेंसिंग टीम के सीनियर कोच नरेंद्र सिंह, उम्मीदें तो हमें भी यही थी कि ये वाला गोल्ड मिलेगा, एक बार फिर से चैंपियन बनेंगे, लेकिन बच्चों ने बहुत मेहनत की, बच्चों का हार्ड लक रहा और आने वाले टाइम में वही बच्चे दोबारा फिर मेहनत करके आएंगे, हम लोग फिर से गोल्ड उठाएंगे। कुल मिलाकर हरियाणा को 2 स्वर्ण 1 रजत, मणिपुर को 2 रजत जबकि महाराष्ट्र को 1 स्वर्ण हासिल हुआ। Physical fitness is the first requisite for happiness. For many young boys and girls, lifting weights was the easiest part of the day. Almost 100 kilometers away from Patna, in the historic city of Rajgir, the weightlifters flexed their muscles and displayed their resolve. Here's Rajiv Ranjan Tiwari with his dispatch. वेटलिफ्टिंग में आज 2 हेवी वेट कैटेगरीज के मुकाबले हुए, जिसमें 2 स्वर्ण दांव पर लगे हुए थे। मुकाबलों की शुरुआत बालिकाओं के +81 वेट कैटेगरी से हुई, जिसमें कांस्य पदक पंजाब की गगनदीप कौर के नाम रहा, जिन्होंने कुल 167 किलोग्राम का वजन उठाया। रजत पदक आंध्र प्रदेश की करनाती नागा रामालक्ष्मी के नाम रहा। रामालक्ष्मी ने कुल 176 किलोग्राम का वजन उठाया। पर स्वर्ण पदक पर कब्जा केरल की अमृथा पी सनी ने जमाया। अमृथा ने स्नैच में 79 किलो, क्लीन एंड जर्क में 102 किलो यानी कुल 181 किलोग्राम का वजन उठाया। स्वर्ण जीतने के बाद अपनी खुशी जाहिर करती अमृथा, मुझे बहुत खुशी हो रहा है एक्चुअली, मतलब बहुत टेंशन में था। कल तक तो बहुत फाइट होगा, लेकिन आज जब स्टेज में रहता है तो कुछ नहीं याद आता, बस करना है याद आता है। तो अभी मुझे गोल्ड मेडल पहना के बहुत खुशी हो रहा है सर। बालकों के +102 वेट कैटेगरी में भी काफी दमदार मुकाबले देखने को मिले, जिसमें हरियाणा के सन्नी भाटी ने स्नैच में 117 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क में 145 किलोग्राम यानी कुल 268 किलोग्राम का वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो वहीं रजत पदक जम्मू एंड कश्मीर के सात्विक लूथरा के खाते में आया, जिन्होंने कुल 263 किलोग्राम का वजन उठाया। जम्मू एंड कश्मीर के लिए वेटलिफ्टिंग में पहला मेडल दिलाने के बाद सात्विक ने हमसे बातें की। महसूस अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। कोच साहब ने हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराई। साथ में जितनी मर्जी हालात खराब हुए, मुझे इंजरी भी आई रिस्ट में, फिर भी हम यहाँ पर मेडल ले सके अपने कोच साहब की वजह से। वहीं कांस्य पदक बिहार के उज्जवल सिंह के नाम रहा, जिन्होंने कुल 241 किलोग्राम का वजन उठाया। बिहार को भी वेटलिफ्टिंग में यह पहला मेडल था, जिस पर हमने उज्जवल से बातें की। बहुत अच्छा लग रहा है सर, मेरे द्वारा ऐसा काम किया गया है, आगे इसी तरह इंटरनेशनल के लिए तैयारी करना है सर। इस तरह से वेटलिफ्टिंग के मुकाबले संपन्न हुए, जिसमें महाराष्ट्र ओवरऑल चैंपियन बना। The Khelo India Youth Games not only build better athletes, but they also build character. Out of the many indigenous games included this time, Thang Ta saw intense action. In Meitei language, Thang means sword and Ta means spear. Ramesh Chandra reports from Bodh Gaya. बालिका वर्ग के 52 किलोग्राम भार वर्ग की फुनाबा अमा प्रतियोगिता में बिहार की प्रिया प्रेरणा ने मणिपुर की इरोम अनामिका देवी को 18-17 से पराजित कर स्वर्ण अपने नाम किया। प्रिया प्रेरणा गोल्ड मेडल जीत चुकी हूँ और मुझे बहुत खुशी मिल रहा है। हमको ना राजगीर में ट्रेनिंग दिया जा रहा था, मैं सारा क्रेडिट ना ट्रेनिंग दिकेन सर और माया मैम को देना चाहती हूँ। वहीं 56 किलोग्राम भार वर्ग में मध्य प्रदेश की अंजलि रावत ने मणिपुर की लॉयम बम डायना को 18-13 से मात दी और स्वर्ण पर कब्जा किया। अंजलि, बहुत खुशी मिल रही है हमें। वहीं बालक वर्ग की फुनाबा अमा की 56 किलोग्राम भार वर्ग प्रतियोगिता में असम के प्रणय दास व 60 किलोग्राम में असम के ही राजेश दास ने स्वर्ण जीता। प्रणय दास कोच को हम बहुत धन्यवाद देता हूँ, उसने मुझको सिखा के आगे लेके आया है। ट्रेनिंग कैंप में भी असम गवर्नमेंट में 1 महीना रखा है ट्रेनिंग कैंप। बालिकाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में फुनावा अनिशुभा प्रतियोगिता में मणिपुर की टी लेम्बी सना देवी ने स्वर्ण अपने नाम किया। वहीं 56 किलोग्राम भार वर्ग में बिहार की माहेका कुमारी ने स्वर्ण अपने नाम किया। आंखों में जीत की खुशी के आंसू लिए माहेका कुमारी, ये मैच लास्ट का वो मेरे पूरे इतने दिनों की मेहनत डिसाइड करेगा, तो बस जी जान लगा के जितना इतने दिन करा है वो सारा इसमें झोंक देना है। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है सारा मेहनत सफल हो गया इतने दिन का।
और लास्ट में लक काम कर गया। वहीं बालक वर्ग में 56 किलोग्राम भार वर्ग में मणिपुर के टी श्रीनिवास सिंह और 60 किलोग्राम में भी मणिपुर के ही के परेहम्बा ने स्वर्ण अपने नाम किया। के परेहम्बा -30 में खेलता है, मैं गोल ले लिया। पदक तालिका के अनुसार 3 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य के साथ मणिपुर प्रथम स्थान, 2 स्वर्ण 2 रजत के साथ असम दूसरे स्थान और 2 स्वर्ण और 3 कांस्य के साथ बिहार ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। The young athletes from all across the country were coaxed to take their first flight by their parents, coaches and officials at the 7th Khelo India Youth Games. On the newly laid tennis court at the IAS Bhavan Patna, there was a flurry of rallies, volleys and aces. Venkatram serves this report. Day 5 and the last day of the tennis competition witnessed boys and girls singles gold medal matches. In the boys section, Shankar Hisnam of Manipur faced the higher ranked Arjun Rathi of Haryana. Shankar started aggressively and did not give any breathing space to his opponent, who brushed him aside 6-2, 6-1 to pick up the gold medal for himself and also added to his state's medal kitty. Arjun Rathi had to contend with a silver. Yesterday, he had won a gold for Haryana in the doubles event of the boys category. The gold winner, Shankar Hisnam, spoke to Akashvani. Yeah, I think I'm the first one who performed in Khelo India Youth Games in tennis. So I won gold medal. So it's good for the state also, good for me also. Gives some motivation to them also. It was difficult, but I did it. So I have no words right now. So I'm feeling good. The girls singles gold medal match went down the wire. Number 1 seed Rishita Reddy Basireddy of Telangana had to use all the arsenal from her armory to prevail over Aishwarya Dayanand Jadhav from Maharashtra 6-1, 2-6, 6-3 to win the gold medal. Yesterday she had lost in the girls doubles gold medal match to the same Maharashtra player. Rishita and Aishwarya will both go home with 2 medals each, 1 gold and 1 silver, of course in different events. A gleaming Rishita spoke to Akashvani on her gold winning performance. It was a great match. I won the first set pretty easily, and then second set she came back, she started running and putting everything inside, so I lost the second set. But then third set I was like, I'm gonna hit and play my game. Yeah, I'm very happy to win silver and gold. Earlier, the track cycling events were held in Delhi, where Rajasthan dominated the velodrome, but the road races were held on the banks of the Ganges at Patna. Just like real gold is not afraid of the melting pot, all the cyclists were not afraid of the hot and grueling weather conditions as they battled intense competition. Ashish Shrangu witnessed the changing of lanes and gears. पटना शहर में गंगा तट के किनारे बने मैरीन ड्राइव पर आज रोड साइकिलिंग के अंतिम दिन व्यक्तिगत रोड रेस में बालिका वर्ग में महाराष्ट्र की 16 वर्षीय आभा सोमन ने 60 किलोमीटर का सफर 2 घंटे 21 मिनट और 46.94 सेकंड में पूरा कर स्वर्ण को अपनी झोली में डाल दिया। पिछले 4 सालों से मैं साइकिलिंग कर रही हूँ पुणे में। आज मुझे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल मिला है और आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट है ये। कंपटीशन भी काफी टफ थी, काफी कुछ सीखने मिला आज के रेस से। बातों ही बातों में आभा ने अपनी 10वीं के बोर्ड परीक्षा के नतीजे भी हमसे साझा कर डाले। मैं अभी 10th क्लास में हूँ, कल ही मेरा रिजल्ट आया था और कल मुझे 95% मिले CBSE में, तो और भी ज्यादा खुशी हो रही है। इस स्पर्धा का रजत भी महाराष्ट्र की आसावरी राजमाने को मिला, जबकि कांस्य पदक पर दावा ठोका तमिलनाडु के हाशिनी ने। बालक वर्ग में राजस्थान ने आज एक बार फिर उस समय अपनी तूती बजा दी जब 17 वर्षीय सुनील सरन ने 80 किलोमीटर का सफर 2 घंटे 13 मिनट और 10.302 सेकंड में पूरा कर स्वर्ण अपने नाम कर लिया। कल रोड रेस में इंडिविजुअल टाइम ट्रायल के कुल 6 पदकों में से 5 पदक राजस्थान ने अपने कब्जे में किए थे। सुनील सरन ने अपनी स्वर्णिम सफलता का श्रेय अपनी ट्रेनिंग को दिया। आज की रेस बहुत अच्छी रही, मेरी जो ट्रेनिंग थी ना वो काम आई। सुनील सरन के प्रशिक्षक महावीर कुकना। गर्मी सर्दी हर तरह का मौसम है, हमारे किसी भी कंडीशन में हम मतलब ट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसे आज इतनी गर्मी थी, धूप भी, तो हमारे बच्चे ऐसी मतलब गर्मी में भी धूप में भी वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। इसकी कैपेसिटी थी इस गर्मी में करने की, तो इन्होंने आज ये अपना प्रदर्शन अच्छा दिखाया। लेकिन इस स्पर्धा में जम्मू कश्मीर के 14 वर्षीय अरसालन अहमद डार का कहना है कि पटना की तेज गर्मी और आर्द्रता ने उनके प्रदर्शन पर असर डाला और उन्हें रजत से ही संतोष करना पड़ा। टेम्परेचर की प्रॉब्लम हुई यहाँ पर बहुत, इसलिए मेरा सिल्वर मेडल आया। रोड साइकिलिंग में कुल 5 पदकों के साथ बालक वर्ग में राजस्थान चैंपियन रहा, जबकि बालिका वर्ग में कुल 3 पदकों के साथ चैंपियनशिप पर कब्जा किया महाराष्ट्र ने।
Yoga is a powerful vehicle for change. As you build strength, you start believing in your own potential. Young athletes at the IIM campus at Bodh Gaya displayed various asanas and drills as they added energy, strength and beauty to the event. Sankalp Mishra narrates their journey. From balance to brilliance and grace to glory, the last day of Yogasan Arena witnessed a celebration of strength, serenity and supreme skill. In the girls' artistic pair finals, the spotlight shimmered brightest on Maharashtra's dynamic duo, Pranjal and Rudrakshi, claiming a well-deserved gold. Rudrakshi shares her effort to reach this moment. हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी. कल हम दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि हमको लेना है तो सिर्फ गोल्ड ही लेना है, और हमारी जो कोऑर्डिनेशन थी उसके ऊपर हमने और ज्यादा वर्क किया, आसन के ऊपर और ज्यादा वर्क किया और ये हासिल कर लिया. Pranjal on creating a perfect spell of coordination for golden victory. पहले तो तुम्हें और तुम्हारे पैर को एक अच्छा सा भरोसा होना चाहिए एक दूसरे पर. ये आर्टिस्टिक पैर की तैयारी 1 साल से कर रहे हैं. इसके पहले तो बहुत अप और डाउन हुए थे. हाँ, ये अलग करिए, मैं अलग कर रही हूँ, पर जब कंपटीशन पास आई तब हम बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे थे. इसलिए अभी स्टेज पर सब कुछ परफेक्ट हुआ और हमें अभी गोल्ड मिला है. West Bengal put up a spellbound act to claim a silver, while the bronze found its way to Rajasthan. Switching to boys' traditional finals, Karnataka's Nikhil rose above the rest, clinching a gold with performance that felt like a moving sculpture, whereas Gujarat managed to get a silver and West Bengal found its way to bronze. Nikhil on his performance. मेरा परफॉर्मेंस अच्छा देना था, बस गोल्ड ऐसा मेरे मन में नहीं था, बस मेरा परफॉर्मेंस बेहतर देना. और जब आज आपने स्कोर देखा तब आपको कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा लगा. Nikhil's coach Mohammad Feroz Sheikh explains his journey from anxiety to joy. माउंटिंग डिसमाउंटिंग में थोड़ा ये था उसका, तो हम उसके ऊपर ध्यान दिए. मोस्ट पॉइंट ऑफ उसमें ला सकते हैं माउंटिंग डिसमाउंट में. फेस और एक्सप्रेशंस, माउंटिंग डिसमाउंटिंग, उसमें ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं. आसन तो सब लगाते हैं. डर था कि वेस्ट बंगाल आगे ना आ जाए, तो मैं स्कोर बोर्ड के पास लगा रहा एंड तक और देखा कि वही टॉप पे चल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई. Gujarat's Daksh on earning a silver medal at boys traditional event. That was also the first medal for Gujarat in the Yogasana event. जब मैं परफॉर्मेंस दे रहा था तब लग रहा था कि ये पहला गुजरात का मेडल होगा, इसलिए मैं अपने तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश किया हूँ. मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा वीक था, इसलिए मैं 0.8 से सेकंड पे आया हूँ. Overall, the Yogasan event saw the domination of Maharashtra with 10 out of 24 medals, followed by Rajasthan on the second and West Bengal on the third position. The adrenaline rush was visible. There were tears of joy and despair. There were moments of sorrow as well as jubilation. These 7th Khelo India Youth Games brought out the best amongst the athletes. Indoor stadium at the Patliputra Sports Complex witnessed multiple assists, double dribbles and slam dunks. Anshuman Jha with his report. बास्केटबॉल में आज सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए. बालक वर्ग का पहला मुकाबला उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में उत्तर प्रदेश ने तमिलनाडु को 76-63 से पराजित किया, तो बालक वर्ग में राजस्थान ने दिल्ली को पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया. उत्तर प्रदेश की ओर से संजय महाकुंभ और जतिन ने अच्छा प्रदर्शन किया और दर्शकों की तालियां बटोरी. बालिका वर्ग में कर्नाटक ने उलटफेर करते हुए महाराष्ट्र को 69-65 से मात दी. कर्नाटक की ओर से महक शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 24 तो निधि उमेश ने 19 अंक अर्जित किए. इससे पहले बालिका वर्ग के पहले सेमीफाइनल में हरियाणा ने पंजाब को हराकर अपना पदक पक्का कर लिया है. पंजाब की टीम ने दूसरे क्वार्टर में अंकों की बराबरी कर ली थी, लेकिन हरियाणा के कप्तान काफी और शूटिंग गार्ड भूमि के तालमेल के आगे पंजाब की टीम बेबस नजर आई. जीत के बाद कप्तान हमने पासिंग करके जो बॉल मारी है उससे हमने फिर से लीड बनाई है. एक्चुअली ना लीड कवर अप हो गई थी, ये बॉल फीड कर दी और उसके बाद इसको बॉल खिलाई मैंने, वो बॉल कन्वर्ट हुई, पंजाब पे प्रेशर पड़ा. दैट्स ऑल. इसके अलावा तनु के तिग्गे और वैष्णवी और लावण्या का प्रदर्शन देखने लायक था. जीत के बाद हरियाणा के कोच हर्षप्रीत, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल प्रॉपरली असिस्ट करती हैं. बॉक्स आउट प्रॉपर रखा आज इन्होंने. पंजाब का जो एडवांटेज है हाइट का, उसको इन्होंने बिल्कुल भी चलने नहीं दिया, ना ही उनकी कन्वर्शन है ना कुछ है. हरियाणा का नया उदय है. पंजाब के पास मेडल ही मेडल है, अब हरियाणा की बारी है. बास्केटबॉल में कल कांस्य और स्वर्ण पदक के मैच खेले जाएंगे. Fighting the elements, young athletes took up the challenge to test themselves and win some precious medals. 120 kilometers from Patna at the Yamuna Bhagat Sports Complex at Begusarai, the boys displayed tiki-taka, quick passes and regulated aggression as Khurshid Ahmed and Sanjay Vyas witnessed the beautiful game unfold in the finals. Jharkhand has become the champion in boys football, creating a double delight for the state as the girls team also won the gold medal yesterday. In the thrilling football final today, the boys of Jharkhand and Orissa
delivered a roller coaster of emotions, culminating in a dramatic penalty shootout. The match started with high intensity under scorching heat, and Jharkhand took an early lead of 1-0 in 16th minute. By virtue of a fault made by defenders of Odisha, Jharkhand scored another goal in 57th minute. In 69th minute, Odisha got a penalty which was converted to a goal by their captain Ronik Maji. Deep into injury time, Odisha found their moment of glory, and at 94th minute, Odisha managed to level the match at 2-2 and sent the crowd into a frenzy. The match proceeded to a nerve-wracking penalty shootout. Both teams showed nerves of steel, but Jharkhand ultimately held their composure better, winning the shootout 5-4 and thus became the champion in boys football in this edition of Khelo India Youth Games. Here is Ramesh Khoya, the captain of Jharkhand team. बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को बहुत खुशी हो रही है कि मेहनत करने के आगे मंजिल अपने आप मिल जाती है। दौरा तो हो गया, लेकिन टाई ब्रेकर है, इसीलिए हम लोग कॉन्फिडेंस रख के हम लोग खेले और आगे मेहनत करेंगे। देश के लिए खेलना हम लोग को जरूरी है और खेलेंगे। इस महामुकाबले में ओडिशा के लड़के परिणाम और प्रदर्शन से थोड़े निराश थे, पर उनमें भविष्य की योजनाएं भी देखी जा सकती थीं। नियत समय के बाद खेल के पेनल्टी शूटआउट में जाने और फिर परिणाम पक्ष में न आने की हताशा जरूर ओडिशा टीम में देखी जा सकती थी, पर ये समय आगे देखने का और गलतियां न दोहराने का था। इस प्रतियोगिता में टीम ओडिशा उप विजेता रही, इस कारण बहुत सारी सकारात्मक बातें वो अपने साथ ले जा रही थी। कप्तान रोनिक की प्रतिक्रिया। कमबैक किए थे और ट्राईब्रेकर में जाके मिस हो गया, फिर भी कमबैक किए थे, फिर जो होना तो हुआ और नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। They say, let the sweat of today be the badge of honor you wear tomorrow. The gymnastic hall at the Indira Gandhi Indoor Stadium at Delhi was abuzz with activity as gymnasts impressed everyone with their skills on the hoop, ball, clubs and ribbons. Shahid Azmi with this dispatch. आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक इंडिविजुअल वर्ग के आज 10 गोल्ड मेडल के लिए जिम्नास्ट ने पूरा जोर लगाया। बालिका वर्ग में 4 और बालक वर्ग में 6 गोल्ड मेडल का फैसला हुआ। उत्तर प्रदेश के हर्षित का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा। उन्होंने आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के ऑलराउंड, फ्लोर और वाल्ट में जहां गोल्ड मेडल जीता, वहीं रिंग्स में सिल्वर मेडल से उन्हें संतोष करना पड़ा। उन्होंने कुल 4 पदक अपने नाम किए। अपने ओवरऑल प्रदर्शन पर हर्षित कहते हैं, प्रदर्शन के बारे में पहले 4 रिपोर्टर्स तो अच्छे किए हैं और 5वां मेरे से नहीं हो पाया, फॉल हो गया, पर ठीक है, आगे और मेहनत करके और अच्छा करेंगे। कौन सा सबसे खास आपका था? मेरा सबसे बेस्ट था फ्लोर और हाई बार, वॉल्ट, यही 3 थे और मैंने 2 में गोल्ड लिया और 1 में मिस कर दिया और अगली बार तीनों पे गोल्ड लेने की कोशिश करेंगे। बालिका वर्ग में निष्का अग्रवाल का प्रदर्शन निखर कर सामने आया। उन्होंने ऑलराउंड और वॉल्ट में जहां गोल्ड मेडल जीता, वहीं अनइवन बार्स और बैलेंस बीम में कांस्य पदक हासिल किया। 2 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर भी निष्का अग्रवाल संतुष्ट नहीं हैं। ओवरऑल काफी अच्छा रहा। आज का थोड़ा मतलब आज 3 एपरेटर्स पे मैंने थोड़ा फॉल कर दिया था, तो आज का थोड़ा डाउन था। बैलेंस बीम का स्वर्ण पदक वर्षा आनंद ने अपने नाम किया। वर्षा कहती हैं, It was a tough match, but I pulled it off, I guess, and it felt good. इसी तरह फ्लोर इवेंट का गोल्ड मेडल महाराष्ट्र की शताक्षी जीतकर गदगद नजर आई। मेरा ये एक ही इवेंट था, फ्लोर इवेंट, और उसमें मेरा अच्छा हुआ। अनिवन बार्स महिला वर्ग का गोल्ड मेडल महाराष्ट्र की अनुष्का पाटिल ने हासिल किया। उन्होंने वार्ड के रजत पदक पर भी कब्जा किया। अनुष्का पाटिल कहती हैं, अनिवन बार्स पे आज मेरा जो भी डिफिकल्टी है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म हुआ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। बालक वर्ग में रिंग्स इवेंट का गोल्ड मेडल जीतने वाले पंजाब के समीर कोहली को सुनते हैं। गोल्ड मेडल लेके तो बहुत खुशी हो रही है, सपना था गोल्ड लेने का और आज आखिरकार मिल ही गया, वो भी खेलो इंडिया में। कंपटीशन बहुत ही ज्यादा अच्छा गया। पॉमल हार्स और पैरेलल बार्स का गोल्ड मेडल दिल्ली के नबीग अली ने जीता। नबीग अपने गोल्डन जीत पर कहते हैं, ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। मैंने बहुत जितना मैं कर सकता था उतना मैंने किया। कई गलतियां भी हुई पर मैंने सुधार लिया। पश्चिम बंगाल के नीलाद्री सरकार ने हाई बार्स का स्वर्ण पदक जीतकर अपने राज्य के पदक तालिका में बढ़ोतरी की। नीलाद्री सरकार अपनी सफलता पर कहते हैं, लास्ट ईयर था मेरा खेलो इंडिया का लास्ट ईयर था, तो मेरे को ऑलराउंड में सेकंड हुआ और अभी हाई बार पे मैं इंडिविजुअल फर्स्ट आया, तो मेरे को बहुत खुशी हो रहा है। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के कुल 10 गोल्ड मेडल में से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली ने 2-2, जबकि तेलंगाना, पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल ने 1-1 गोल्ड मेडल जीता। Gold medals aren't really made of gold. They are made of sweat, determination, and a hard-to-find alloy called guts. Young budding wrestlers were in action at the Gyan Bhavan in Patna. Some had a near fall. Some were awarded penalty points. Dharmendra Rathod had a bird's-eye view on the action. कल खेले गए लड़कों के फ्री स्टाइल सेमीफाइनल 55 केजी, 65 केजी और 80 केजी, वहीं ग्रीको रोमन सेमीफाइनल 71 केजी और 51 केजी का इवेंट। लड़कियों का सेमीफाइनल 46 केजी और 69 केजी के सेमीफाइनल क्वालिफाइंग खिलाड़ियों का आज फाइनल
फाइनल बाउट खेला गया। लड़कियों के 46 केजी के इवेंट में खुशी दिल्ली ने रूपा कुमारी बिहार को पराजित कर ब्रॉन्ज पदक जीता। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि खाली हाथ से जाना तो मेडल ही होता है। अगली बार गोल्ड की तैयारी करेंगे। वहीं लड़कियों के 46 केजी के गोल्डन पर दांव रितुजा सेंटो महाराष्ट्र ने अनु हरियाणा को पराजित कर लगाया। हमको अच्छा लग रहा है इधर आकर और मैंने गोल्ड मेडल जीत गया है। 1 साल हो गया मैं तैयारी कर मैंने आज तक मेडल नहीं जीता। मेरा पिछले बार ब्रॉन्ज था और इस बार गोल्ड आया, मुझे बहुत खुशी लग रही है। लड़कियों में 69 केजी के ब्रॉन्ज के लिए सुखदीप कौर और हे चौधरी गुजरात के बीच मुकाबला था। पंजाब के सुखदीप कौर ने इन्हें पराजित कर ब्रॉन्ज पदक जीता। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ब्रॉन्ज मेडल जीतकर। यहाँ पर आगे से और मेहनत करके हम और मेडल गोल्ड जीतेंगे। वहीं अंशिका यादव उत्तर प्रदेश ने प्रणाली विट महाराष्ट्र को पराजित कर ब्रॉन्ज जीता। गोल्ड पदक पर कब्जा मनीषा हरियाणा ने 4-0 से पलक यादव राजस्थान को पराजित कर जीता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गोल्ड जीतकर। मैं ये सोचूंगा कि मेरा गोल्ड ही आए, अपने देश के लिए हर बार गोल्ड लेके आऊं। लड़कों के 51 केजी के ग्रीको रोमन में आदित्य दिल्ले जो कि महाराष्ट्र के हैं, जहीर रजक बिहार को पराजित कर ब्रॉन्ज पदक जीता। बहुत अच्छा लग रहा है ब्रॉन्ज मेडल जीत के और इधर से ही अभी कोशिश कर रहा हूँ कि भारत देश से भी मेडल लाना है, इंटरनेशनल खेलना है अभी। ग्रीको रोमन के 51 केजी में अदगोंडेधर कर्नाटक ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। इन्होंने राहुल हरियाणा को पराजित किया। संध्या का 4 बजे मेरा फाइनल बोर्ड होता था। फाइनल बोर्ड में मैं अच्छे से प्रदर्शन किया, मैं गोल्ड जीता। आज घर में बहुत खुश है, मैं भी खुश है, मेरा स्टेट भी बहुत खुश है। आज हुए लड़कों के फ्री स्टाइल के 60 केजी और 71 केजी, ग्रीको रोमन के 60 केजी और 92 केजी तथा लड़कियों के 53 केजी, 57 केजी और 65 केजी के सेमीफाइनल मुकाबले संपन्न हुए। इन सभी कैटेगरी में मेडल बाउट कल खेला जाएगा। Diamonds may be the hardest material on our planet, but the resolve of all the athletes is harder than the precious stone. As the games unfolded, national records stumbled on the track and young athletes on the horizon got their due. Here's a report from Simanta Burma. The first gold medal of the concluding day of the athletics event came from girls javelin throw, and Haryana almost clean swept the game, winning all the 3 medals. Representing Haryana, Bhaibha Pilania won the gold medal with an impressive throw of 50.71 meter. In boys javelin throw, it's again Haryana's Himanshu who sealed the gold medal with a throw of 73.71 meter. After their magnificent performance, speaking to Akash Bani on behalf of Haryana team, here is coach Hanuman Singh. ट्रेनिंग जिस तरह इंडिया में पहले भी इनके नाम मीनाक्षी के नाम 14 का इंडिया रिकॉर्ड है, 17 का स्कूल नेशनल का रिकॉर्ड है। इसका जूनियर नेशनल में गोल्ड था। वो लड़की 5th रही है, उसका अंडर 16 का इंडिया रिकॉर्ड है और तेरी ने भी स्कूल नेशनल में 2nd किया था। It's raining medals in the run today. In 800 meter run boys event, Maharashtra's Harshal Dharmani won the gold, while in the girls category of the event, it's Edwina Zeshan representing Tamil Nadu secured the gold medal. It's the second gold medal for the Tamil Nadu athlete who grabbed the yellow medal in 400 meter run too. I'm feeling very happy. I was just yesterday I already ran 400. What is going to be happening today? My legs are tight. Don't know what is going to happen, but yes, I just believe in myself and run and gave my best. In 200 meter run in girls category, it's Bhumika Sanjay from Maharashtra who won the gold, and in boys category of the event, Saket from Jharkhand cleans the gold medal. Here is Bhumika. I'm feeling so good, but still not satisfied with the timing because I want to do. Though Saket won the gold, he expressed a mixed feelings as he couldn't attain his personal best. बहुत अच्छा लगा। ये मेरा पर्सनल इवेंट नहीं है, मेरा पर्सनल इवेंट 400 है, बट हम उसमें उतना अच्छा नहीं कर पाए। इससे आगे नेक्स्ट मे बी जूनियर नेशनल्स, देन नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्राई रहेगा। There were all together 12 gold medals in athletics event in the final day today, and Maharashtra and Haryana dominated most of the events. Here's a look at the latest medals tally. Maharashtra finished with more than half a century of gold medals to dominate the games. Haryana jumped a couple of spots in the medals tally with more than a dozen medals on this day. Rajasthan finished 3rd in the medals tally. Host Bihar finished 14th. The summer of 2025 will be the most memorable for all these athletes. These will be the best days of their lives. That's all we have for today. Just to remind our listeners, you can listen to the live running commentary of the closing ceremony of the 7th edition of the Khelo India Youth Games at Bihar on Akashvani from 6:25 p.m. onwards on Thursday 15th May 2025.
This is Pankaj Athavale with Muammar Imsong and producers Praveen Chand and Mubin Ahmed Khan saying goodbye. 7वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार। अभी आप बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर रिपोर्ट सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की केंद्रीय कवरेज टीम द्वारा प्रस्तुत किया गया। You just heard highlights of the 7th Khelo India Youth Games being held in Bihar. This program was presented by the Central Coverage Team of Akashvani.